صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اسد علی قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آؤ کام کریں۔ متعلقہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ حصول برکت کے لیے آپ بھی پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔ ویوز، چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور بڑا ہی زبردست اس میں سبق آموز پیغام دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے ویوز کے ساتھ بھی یہ پیغام شیئر کر دوں۔ اس ویڈیو میں نے یہ دیکھا کہ 2 بندے موٹر سائیکل پہ آتے ہیں کسی ٹھیلے والے کے پاس، اور ٹھیلے والے نے کیا لگا رکھا ہے اپنے ٹھیلے کے اوپر، وہ بیچ رہا ہے برگر اور کچھ اسی قسم کی جو ہے 1-2 آئٹمز بیچ رہا ہے۔ اب اس کے بعد بریک لگاتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس جو آئی فون ہے نا اس کو نکال کے اپنے ہاتھ میں رکھ لو، ذرا امپریشن اچھا پڑتا ہے، جب بھی کوئی بندہ یہاں سے گزرے گا تو دیکھے گا تو ہمارے ہاتھ میں آئی فون ہوگا تو ہمارا بڑا امپریشن اچھا بیٹھ جائے گا اس کے اوپر کہ یار ہمارے پاس تو آئی فون ہے، یعنی کہ اتنا مہنگا فون ہے اور ہم جو ہیں بڑے ہائی فائی لوگ ہیں، مطلب یہ وہ برابر کرانا چاہتا تھا۔ تو تم اپنا فون جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ اچھا، وہ جاتا ہے اس ٹھیلے والے کے پاس اور وہاں پہ جا کے اس کو آرڈر کرتا ہے برگرز وغیرہ کا۔ اچھا، وہ آرڈر کرتے ہیں، جیسے ہی وہ برگر وغیرہ ٹھیلے والا تیار کر کے تو اس کے ہاتھ میں دیتا ہے نا، تو وہ برگر اس کے ہاتھ میں ڈلیور کرنے کے بعد ایک بندے سے پوچھتا ہے وہ ٹھیلے والا کہ بھائی آپ نے یہ جو فون اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یہ کون سا فون ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے، یعنی کہ جو کسٹمر تھا جس کے ہاتھ میں وہ موبائل تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ آئی فون ہے، آئی فون 13 پرو میکس ہے یہ فون، اور بڑا مہنگا فون ہے، آپ کو پتا ہے یہ بہت مہنگا فون ہوتا ہے آئی فون۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا کتنے کا یہ فون؟ تو وہ آگے سے اس کی قیمت بتا دیتا ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، مطلب سپوز کر لیں کہ 3 لاکھ روپے اس نے بتا دیا کہ 3 لاکھ روپے کا یہ فون ہے۔ لیکن آپ تو ٹھیلے والے ہیں، آپ یہ فون کے بارے میں میرے سے کیوں بات کر رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں اس کے بارے میں اور اس کی قیمت کے بارے میں؟ اب وہ تھوڑا سا شرمندہ ہوا جب اس کے کسٹمر نے اس کو یہ کہا نا کہ آپ مطلب بڑی حقارت کی نظر سے دیکھ کے کہ یار یہ ٹھیلے والا اتنے مہنگے فون کے بارے میں میرے سے پوچھ رہا ہے اور اس کی قیمت پوچھ رہا ہے، اس کی کوالٹی پوچھ رہا ہے کہ کون سا فون ہے۔ تو وہ ٹھیلے والے نے آگے سے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی سالگرہ ہے کچھ دن کے بعد، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فون آپ نے پکڑا ہوا ہے مجھے بڑا دکھنے میں اچھا لگا ہے، تو میں اس کو ایسا فون جو ہے وہ گفٹ کر دوں۔ اب وہ جو 2 بندے تھے، دونوں کسٹمرز جو تھے اس ٹھیلے والے کے، وہ ایک جس نے کہا تھا نا کہ اپنے ہاتھ میں موبائل فون رکھ لو تو بڑا اچھا امپریشن بیٹھے گا دیکھنے والوں پہ، وہ اس کو کہتا ہے کہ یار چلو یار کس بندے کے منہ لگ گئے ہم، اب یہ ہے ٹھیلے والا، اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ ٹھیلے پہ برگر وغیرہ بیچ رہا ہے اور ہم سے آئی فون کے بارے میں معلومات لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی سالگرہ کے اوپر ایسا فون گفٹ کرنا ہے۔ چلو یار یہاں سے نکلتے ہیں، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بات جو ہے وہ ٹھیلے والے کو بڑی ناگوار گزری۔ اس نے ان دونوں سے سوال کیا کہ بھائی آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی نظریں جو تھیں خاص طور پہ اس بندے کی طرف تھیں کہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ ہم تو نوکری کرتے ہیں۔ ٹھیلے والا پوچھتا ہے آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 35,000 ہے، منتھلی مجھے 35,000 روپے ملتا ہے۔ اس نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، ٹھیلے والے نے کہا تھوڑی دیر کے بعد جس بائک کے اوپر وہ آئے تھے اس کے اوپر بیٹھ کے ابھی ایک بندے نے کی لگائی ہے، اس کی موٹر سائیکل سٹارٹ ہی کی ہے، تو اس نے کہا بھائی ذرا رکیے، تو وہ دونوں رک گئے۔ کہتے کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا سوال کرنے لگا ہے، شاید بائک کے بارے میں ہمارے سے اب سوال کرنے لگا کہ یہ بائک کتنے کی ہے اور کون سی والی بائک ہے، کس کمپنی کی بائک ہے۔ اب ٹھیلے والا پتہ کیا کہتا ہے ان کو؟ ٹھیلے والا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کرتا ہے کہ اچھا تو آپ لوگ ہاتھ میں تو آئی فون آپ نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ اس سکوٹر کے اوپر، اس سکوٹی سی کے اوپر آپ لوگ شہر میں گشت کرتے ہو، شہر میں پھرتے ہو، سیریں کرتے ہو، آپ کو پتا ہے
हाथ में चाबी लेके उनको दिखाता है। आपको पता है कि ये किस चीज की चाबी? वो कहते हैं ये तो गाड़ी की चाबी लग रही है। कहते हैं वो जो पीछे गाड़ी खड़ी है ना, गाड़ी पीछे खड़ी हुई थी, इशारा करके उन दोनों को कहता है कि वो जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है ना, वो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। मैं रोजाना गाड़ी पे आता हूं ये ठेला लगाने के लिए और गाड़ी पे ही वापस जाता हूं। आप लोग तो मुझे इतनी हकारत की नजर से देख रहे थे कि मेरा कारोबार छोटा सा है और छोटा ये ठेले लगा के तो मैं बर्गर वगैरह और ये सेवइयां वगैरह और ये मतलब जो भी वो चीजें बेचता था ये बेचता हूं। तो आप लोगों ने मेरी औकात का अंदाजा लगा लिया कि मैं ठेले वाला हूं तो मेरी कमाई कितनी होगी। आप 35,000 रुपये महाना तनख्वाह लेते हो ना, और हो भी किसी के मुलाजिम। मैं तो किसी का मुलाजिम भी नहीं हूं और मैं आपसे कितने ही गुना ज्यादा कमाने वाला बंदा हूं। ये देख लो, ये मेरी पीछे गाड़ी खड़ी हुई और आप मोटरसाइकिल के ऊपर फिर रहे हो। यानी मेरी ये औकात है कि मेरे पास गाड़ी है और आपकी ये औकात है कि आपके पास मोटरसाइकिल है। फोन अच्छा है तो फिर क्या हो गया? कहता अच्छा भाई आप कितने कमा लेते हैं पैसे ठेले से? कहता कि मेरा बर्गर इस इलाके में बड़ा मशहूर है और कम से कम जितना टाइम मैं ये ठेला लगाता हूं मैं 500 बर्गर सेल करके जाता हूं और तकरीबन 8 से 10,000 रुपये मेरी रोजाना की बचत होती है। इस हिसाब से मुझे महाना तकरीबन 3 लाख रुपए बच जाता है। और आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मैं पार्टनरशिप के ऊपर अभी ये काम कर रहा हूं, अभी मेरा अपना जाती काम नहीं है। 1.5 लाख रुपया पार्टनर को भी देता हूं, 1.5 लाख रुपया महाना मेरी जेब में आता है। तो लिहाजा आइंदा से ये समझ लो कि किसी के कारोबार को, किसी के काम को देख के उसकी हैसियत का अंदाजा लगाना छोड़ दो। अच्छा व्यूअर्स, ये बड़ा ही सबक आमोज ये वाली बात थी, बड़ा सबक आमोज वाकया था, आपके साथ मैंने शेयर किया। इसमें हमारे लिए समझने का बड़ा दर्स है कि देखिए, एक तो हमें यह सबक मिला कि हमने किसी की हैसियत का अंदाजा अपनी नजर से देख के चेक करके, या हमें जो लगा कि इसकी हैसियत है, इस चीज का हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की हैसियत का अंदाजा लगाएं। और दूसरी जो मेरी मेन बात थी, एक तो ये मैसेज आप तक पहुंचाना था कि हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या सोचना नहीं चाहिए, किसी की हैसियत का अंदाजा लगाने का हमें हक है या नहीं है। एक ये बात, और दूसरी वो बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था इस वीडियो पैगाम के जरिए, वो ये है कि व्यूअर्स, कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की अपनी सोच छोटी या बड़ी होती है। अगर इंसान की सोच वसी है, इंसान की सोच बड़ी है, तो जो वो काम कर रहा है वही बड़ा है। चाहे वो ठेला लगा रहा है, चाहे वो ठेले के ऊपर फ्रूट बेच रहा है, चाहे वो दुकान अच्छी सी बना के उसके ऊपर फ्रूट बेच रहा है, चाहे वो सुबह नाश्ते का काम करता है किसी ठेले के ऊपर, किसी रेडी के ऊपर नाश्ता फरोख्त करता है, या बड़ी अच्छी दुकान बना के वहां नाश्ता सेल करता है, चाहे वो जूते बेचता है, चाहे वो कपड़े बेचता है, कुछ भी बेचता है, जो उसकी हैसियत के मुताबिक है, जाहिर है उसने वही काम करना है। और जो काम करने में वो राजी है और जो काम करने में वो मुतमईन है, वही बड़ा कारोबार है। ठीक है। और आप जो ये समझते हैं ना कि छोटा कारोबार हमने नहीं करना, अक्सर लोगों के जहन में ये बात होती है कि हमने कोई छोटा कारोबार नहीं करना। उसमें उनकी सोच इस लिहाज से उनकी हौसला पस्त हो जाता है कि भाई, जब उनका जहन बना होता है कि हमने तो बड़ा कारोबार करना है, अब वो इंतजार में लग जाते हैं कि भाई इतना पैसा कहां से आए, जब इतना पैसा आएगा तो फिर हमने तो बड़ा ही कारोबार करना है, हमने तो घूमने वाली कुर्सी के ऊपर ही बैठना है, हमने तो एसी वाला ऑफिस ही बनाना है या एसी वाली दुकान ही बनानी है, फर्निश दुकान, बेहतरीन 2-3 मुलाजिम रखने हैं। मतलब अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हमने ऐसा कारोबार करना है। लेकिन व्यूअर्स, ये इंतहाई बड़ी गलत फहमी है इंसान के दिमाग में जो पैदा हो जाती है। इंसान को कारोबार करने में, कोई काम करने में देर करनी ही नहीं चाहिए। चाहे उसकी हैसियत, यानी मेरी अगर हैसियत एक ठेला लगाने की है तो मुझे ठेला लगा लेना चाहिए। इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास कब इतना पैसा आएगा कि मैं बड़ी सी दुकान बना के 2-3 मुलाजिम रख के तो फिर ही कारोबार स्टार्ट करूंगा, तो फिर ही मैं कारोबारी बंदा कहलाऊंगा। नहीं, ऐसी कई मिसालें आपको रोजमर्रा जिंदगी में मिलेंगी। सुबह आप जिससे नाश्ता लेने जाते हैं, चने लेने जाते हैं, पाए लेने जाते हैं, दही लेने जाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो ऐसे ही हाथ छनका के और ताड़ी लगा के शाम को घर में चला जाता है, कुछ कमा के नहीं लेके जाता? अरे नहीं, वो हजारों रुपए दिहाड़ी लगा के जाता है। उनकी दुकानों का किराया भी कम होता है, और अक्सर जो ठेले वाले हैं उनका तो ना बिजली का बिल है और ना कोई दुकान का किराया है। ठीक है। वो रेडी एक दफा उन्होंने ले ली है, बर्तन एक दफा उन्होंने ले लिए हैं, वो चने वगैरह पकाते हैं, सेल कर देते हैं, चावल वगैरह पकाते हैं, सेल कर देते हैं। उनका ना कोई रेंट है, ना कोई किराया है, ना कोई बिजली का बिल है और ना कोई एडवांस है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे इलाके में एक ऐसा
मैं वीडियो भी बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, मैंने सोचा है उस बंदे की मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके काम के बारे में आपको बताऊंगा। वो सुबह चने लगाता है, मतलब हम अक्सर जो है चने वगैरह सुबह नाश्ते के लिए, हर इलाके में अपना रिवाज होता है, हमारे अपने शहर में ये रिवाज है कि सुबह नाश्ता जो है चने दही वगैरह लोग बाहर से लेते हैं, हम भी चने वगैरह बाहर से लेते हैं। अब वो बंदा एक रेडी के ऊपर चने बेचता है, साथ उसने चावल रखे हुए होते हैं, नमकीन भी और इसी तरह मीठे भी, यानी 3 देश के उसकी रेडी के ऊपर होते हैं। रेडी कितने की? 8-10 हज़ार की। बर्तन कितने होंगे? मैक्सिमम 10 से 15 हज़ार के होंगे। उस बंदे से एक दफा मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि यार तुम कितने चने बेच लेते हो? वो कहता है भाई मैं दिन के कम से कम 20 किलो चने बेच जाता हूँ। अब आप व्यूअर्स, आपने घर में कभी चने पकाए होंगे, ला के दिए होंगे, 1 किलो चने भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 1 किलो चने भी, लेकिन वो बंदा 20 किलो चने दिन के बेच जाता है। और सुबह नमाज के बाद ये कह लें कि 5 से 6 बजे के दरमियान में वो रेडी लगाता है और 12-1 बजे तक फारिग हो जाता है। अब उसके ऊपर है कि वो मजीद आगे 3-4 बजे तक ये कारोबार अपना जारी रखे या नहीं, लेकिन चूंकि वो 12-1 बजे फारिग हो जाता है 20 किलो चने बेच के, तो वो उसी में मुतमईन है। और कम से कम मेरा ये अंदाजा है कि कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपए की वो साफी बचत लेके घर जाता है। हम क्या समझते हैं भाई, हमारा तो ये स्टेटस है, हमारा तो ये लेवल है, हम इतने खानदानी लोग हैं, हम कैसे सुबह चने लगा के तो नाश्ते वगैरह का काम शुरू करें, हम कैसे फ्रूट की रेडी लगा के फ्रूट का काम शुरू करें, हम कैसे, अच्छा जी भाई आप फ्रूट की दुकान कोई अच्छी सी बना लें, आप नाश्ते की कोई बड़ी अच्छी वीआईपी दुकान बना लें, आप बेशक वहां सोने की कुर्सियां और टेबल रखने वाली आपकी औकात है तो आप वो रख लें, सोने के बर्तन रख लें। लेकिन मैं ये क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, अपने व्यूअर्स का ये ज़हन इस लिहाज से क्लियर करना चाहता हूं कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो काम करने में आप मुतमईन हो और जितनी आपकी अपनी हैसियत हो, जितना इन्वेस्ट करके आप जो अफोर्ड कर सकते हो, जितना पैसा आप, जितना आपके पास पैसा है, आप उस लेवल का कोई कारोबार ढूंढ लें, लेकिन आप काम जरूर करें। काम, अब जाहिर है, अब जैसे मैं वीडियोस वगैरह के लिए मैं लोगों से मालूमात लेता हूं, फिर किसी कारोबार की वीडियो बना के शेयर करता हूं, तो मुझे फिर अंदाजा होता है कि यार ये लोग कितना कमा रहे हैं, माशाल्लाह से माशाल्लाह से, और इसके हलाल कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि हमने काम करना है। उन्होंने अगर ये देखना हो ना कि हमारी जात क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, लोग क्या कहेंगे वाले अपने माइंडसेट से बाहर निकल आए और काम करें, कोई ना कोई काम करें। मेरे चैनल का आपको पता है कि स्लोगन क्या, कि फारिग नहीं रहना, काम करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ढेर सारा मतलब काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत दिया है और काम भी कर रहे हैं, हम बैठ के भी खा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं ये को अल्लाह माफ करे कोई बड़ाई अपनी नहीं बयान कर रहा, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। काम करने में एक तो इंसान जो है, इंसान का ज़हन जो, इंसान वैसे एक तो मसरूफ रहता है, कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई ना कोई काम धंधा कारोबार होना चाहिए, लोगों से ताल्लुकात बनते हैं, लोगों से मेल जोल होता है, इंसान घर से बाहर निकलता है। काम नहीं करेंगे, अच्छा पैसा हमारे पास, अच्छा हम 7 नस्लें हमारी बैठ के खा सकते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब है कि वो बंदा काम ना करे? नहीं, हमें काम करना है। ठीक है व्यूअर्स, मैंने आपको एक तो ये पैगाम दिया इस वीडियो के अंदर कि हमने किसी की हैसियत का अंदाजा, उसका काम, उसके कपड़े, जूते, उसका जो जाहिरी तौर पे हमें स्टेटस नजर आ रहा है, उससे हमने अंदाजा नहीं लगाना कि इस बंदे की क्या हैसियत है। और दूसरा ये कि हमने किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना, बल्कि सोच छोटी या बड़ी होती है। हमने ये समझना है कि यार हमारी सोच बड़ी है, लिहाजा अगर ये बंदा किसी के जूते पॉलिश भी कर रहा है ना, तो ये भी इसका बड़ा कारोबार है। और जूते पॉलिश से याद आया, आप क्या समझते हैं कि जो बंदा जूते पॉलिश करता है वो घर में कमा के कुछ नहीं लेके जाता है? अरे उन लोगों से बेहतर है कि जो घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, घर में बैठ के फारिग रोटियां तोड़ रहे हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, किसी से मतलब लोगों का ये तारुफ बन गया कि भाई, वो एक बड़ी मजे की बात है, वो कहता है बंदा कि यार आजकल किसी से पूछो ना, मतलब वेले लोग इतने हैं, फारिग लोग इतने हैं कि किसी से पूछो ना कि भाई आप क्या करते हो, कहता है मेरे वालिद साहब फलां ऑफिसर है, मेरे वालिद साहब बाहर के मुल्क में होते हैं, मेरा बड़ा भाई दुबई होता है जी। मतलब उनका तारुफ ये बन गया है। इंसान की अपनी पहचान होनी चाहिए, इंसान का अपना ब्रांड होना चाहिए, इंसान का अपना तारुफ, अपना जाती तारुफ होना चाहिए, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए कि भाई मैं ये करता हूं, मेरा नाम असद अली काजी है, अच्छा भाई मेरा ये कारोबार है, इस जगह के ऊपर मैं ये कारोबार करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल कमाता हूं। मतलब इस किस्म का तारुफ होना चाहिए, इंसान का अपना एक बाकायदा ब्रांड होना चाहिए, इंसान का अपना जाती तारुफ होना चाहिए कि जो कोई बंदा मेरे से पूछ रहा है मैं उसको जवाब दे सकूं कि भाई मैं ये क्या करता हूं, मैं ये वाला कारोबार करता हूं। अच्छा कोई बंदा, आप ये देखें, और कोई बंदा फारिग है, उससे कोई मुलाकात होती है, किसी शादी फंक्शन के ऊपर बंदा जाता है, फौतगी पे जाता है, या कोई ऐसे गेट टुगेदर होता है, तो कोई दूसरा बंदा पूछता ही है ना कि भाई आजकल आप क्या कर रहे हैं।
अच्छा, कितनी शर्म वाली बात है कि वो बंदा ये कहे कि भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। लिहाजा कुछ ना कुछ करना चाहिए, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। आपने कारोबार करना है, आपने काम करना है, तो आप जो है इस चीज का इंतजार ना करें कि मेरे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो फिर ही मैं कारोबार शुरू करूंगा। नहीं, जितने पैसे हैं उसके मुताबिक कोई भी, अब यूट्यूब भरी पड़ी है, हजारों नहीं लाखों जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ छोटे बड़े कारोबारों के बारे में उनकी फेजिबिलिटी बताई हुई होती है कि क्या इन्वेस्ट करें, किस तरीके से काम करें, इतने पैसे लगा के इतने पैसे कमा सकते हैं। आप किसी चीज को, किसी को अपना उस्ताद ना बनाएं। होता है ना कि यार एक बंदे का उस्ताद हो, शागिर्द हो, तो फिर ही यार ये कोई बंदा काम सीख सकता है, कोई हुनर सीखा हुआ हो तो फिर ही बंदा कोई कारोबार कर सकता है। नहीं, यूट्यूब को अपना उस्ताद बना लें। यूट्यूब को आप उस्ताद बनाएंगे, यकीन करें आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप रोजाना जो टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और कहीं कहीं आप जो है फिल्मों और ड्रामों के ऊपर आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं, आप रोजाना के 30 मिनट सिर्फ जो है, रोजाना 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट यूट्यूब के ऊपर देने लग जाए तो आपका एक तो माइंड सेट अगर नहीं बना हुआ तो बन जाएगा कि भाई मैंने कोई कारोबार करना है। हाँ, बिजनेस वाली वीडियोस आपने देखनी है उसके बाद। और दूसरा आपका ये ध्यान भी बन जाएगा कि यार अगर मेरे पास, अगर ऑलरेडी आपका ये ध्यान है कि मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो फिर ही मैं कारोबार करूंगा, आपका ये ध्यान क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ये माइंडसेट उल्टा बन जाएगा कि भाई अच्छा ये मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं ये काम कर सकता हूँ, बंदा ये बता रहा है। अच्छा, वो बता रहा होता तो उसका ये नहीं मतलब होता कि वो लाखों रुपए मुनाफा बता रहा है तो लाखों रुपए मुनाफा ही हो। लाखों रुपए मुनाफा नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होगा, मेहनत आपके जिम्मे है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पैगाम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये पैगाम पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा चैनल जिसका नाम है आओ काम करें, इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे चैनल का जो स्लोगन है कि फारिग नहीं रहना, काम करना है, इसको भी आपने नहीं भूलना। अभी तक के लिए इतना ही। असद अली काजी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।